ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਭਲਾ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਜ ਫੁਲਜ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਲਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਲਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਫਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬੇ ਲਾਈ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 10 ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਆਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਹੀਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਲਫਾਜ਼। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਫਾ 106 ਸਫਾ 106 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ? उसे लिखा वे कि चाकू की नोक शारक में धंस गई और इलाज कराने के लिए स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड गए। डॉक्टरों ने ये मशवरा दिया कि अगर हमने ये नोक निकाल दी तो इनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, उत्थे 106 सफे ते लिखे शाहराग में धस गई। हाँ जी, ये सारे झूठे ने कि केड़े को सच्चे? शाहराग धस जे ते जिंदा रह जांदा बंदा। चलो चलो, तुसी अपना मफहूम ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਏ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਕ ਚਾਕੂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਇੰਜ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਕੂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੋਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਖੁਦਾ ਸਫਾ 106 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਾਕੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਨੋਕ ਸ਼ਾਹਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੁਸਤੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ NGO ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨੇ।
ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰਕ ਗੱਲ ਚੌਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਬੂ ਰਾਫੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ ਲੰਦਾ ਵੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਵਲੀਦ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਕਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਮਹਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਗਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਉਹਦਾ ਵਹਾਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਗਲਰ ਵੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਵੇਨ? ਜਗਲਰ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ जिंदा रहता। वल्ला वाला अमर नजीर भाई, एक बात हो सकती है आपसे? जी करें मैं अमर नजीर भाई देखें, असल में साइंस अभी तक वहाँ पहुँच नहीं सकी। एक तो आप ऐसे ही जिद और अड़ी करना शुरू कर देते हैं ना। देखें, जहाँ दरख्तों के फल जो हैं पक कर परिंदे बनकर उड़ना शुरू कर दें और दरख्त जो है वो आग के दरख्त हों, और अभी तक बॉटनी की साइंस पहुंच नहीं सकी, मैं ये वाह वाला बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये भी तो हो सकता है ना कि पेट की अंतड़ी दिमाग में जा रही हो और शाहरग जो है वो पेट में जा रही हो। फिजियोलॉजी भी तो मुख्तलिफ हो सकती है ना, शायद अभी तक साइंस उस हद तक नहीं पहुंची। तो आप अड़ी ना किया करें, मुमकिन है कि वो शाहरग ना हो, कोई पेट की अंतड़ी हो जो दिमाग में जा रही हो आजमे वाली। इस तरह का तो मामला ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में एक ने कहा कि भाई वो 2 गुर्दे लगा, नहीं वो कहता है 2 गुर्दे की बजाय 3 गुर्दे लगा दिए उन्होंने करके, लगा के वो एंजियोप्लास्टी जो भी उसको कहते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो हमारी समझ में तो नहीं आती है कि दिल दाएं तरफ हो सकता है, अंतड़ी दिमाग को जा सकती है, गुर्दे 3 हो सकते हैं, हमारी समझ में तो नहीं आ सकती ये बातें। अगर हैं तो फिर उसका कुछ सबूत देंगे तो हम खामोश हो जाएंगे, मान जाएंगे। पर अच्छा, वो बात ये मैं कर रहा था अकबर खान साहब, आप मान गए हैं कि शाह रग को वो लगा चाकू। अच्छा, शाह रग को जाके टच किया चाकू ने, फिर भी बंदा ना मरा, तो अब लोग नहीं मानते कि उस बंदे की शाह रग कटी है, क्योंकि वो तो उसके बाद भी जिंदा रहा। तो ये जो आप कहते हैं कि जो मुफ्तरी होता है उसकी शाह रग कटती है, अब कटी है आपके सामने, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। फिर भी लोग ना मानने वाले नहीं मानते, कहते हैं नहीं कटी। उनका फिर कैसे आप उनको यकीन दिलाएंगे शाह रग कटी है? बस मसला तो यही है ना फिर, कि मुजद्दद का फैसला करना है इस बात पर कि अगर वो झूठ बोलेगा खुदा का नाम लेके तो उसकी शाह रग कट जाएगी। ठीक, शाह रग आप कहते हैं ये इस बंदे की कटी है, बंदे उसके हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पैरोकार हैं, वो नहीं मानते कटी है। आप चंद लोग कहते हैं कि कट गई है, फिर बताएं कि फायदा क्या हुआ? ऐसी खुली निशानी पेश करें कि जिसको देखकर कोई मुनकर झुटला ना सके,
ऐसी कोई दलील पेश करे। ये क्या दलील है भाई कि शाहरग तो कटी है लेकिन बंदा जिंदा है। नज़ीर भाई, अमन नज़ीर भाई, एक और तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपको यूरोप की विच हंट्स के मतलब तो आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप यूरोप में ही होते हैं। वहाँ पर ये उसूल था ना कि चर्च कहता था कि पत्थर, तगड़ा सा पत्थर बांधो ना औरत के साथ, तो फेंक दो उसको दरिया में या कुएं में, अगर तैरना शुरू हो गई तो जो है वो चुड़ैल है, और अगर डूब के मर गई तो फिर जो है वो जो है बेगुनाह थी। को इसी तरह का उसूल मुझे ये भी लग रहा है कि बस छुरी लेकर तो मारना शुरू कर दो। हाँ, तो मामलात कुछ इस तरह के मुझे लगते हैं, ये शायद उधर से ही कोई रवश आई है, लेकिन बहरहाल मुमकिन है। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप इसके ऊपर, बड़ी खुशी हुई। तारक चौहान साहब, मसला जो खड़ा हो गया चौहान साहब, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ तो कोई नहीं। जवान साहब, शाहरगें कटी जा रही हैं, छुरियां टूट रही हैं, हाँ जी, शाहरग तो आपको कट क्या करनी मसला कट भी, रही है ना और आप बात नहीं आप कर रहे। मिर्जा मसरूर को मानते हैं, ना आप मिर्जा महमूद को मानते हैं, ना मिर्जा साहब को मानते हैं, ऐसे ही आप इसके ऊपर अपनी सर खपा रहे हैं। नहीं मानते ना आप है ना हम मानते हैं, आप भी उनको मुफ्तरी सुनते हैं, हम भी उनको। आमर भाई, हाँ जी, तो बस जब मुफ्तरी है तो बस ठीक है, शाहरग कटी ना कटी उससे क्या फर्क पड़ता है। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਜੱਦਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਖਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੌਕਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜੱਦਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੇ ਦਾਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹੈ। ਵੀ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਜੱਦਦ ਹਾਂ, ਮੁਜੱਦਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਜੱਦਦ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਨ ਕਰਦੇ। ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰਗ ਵੱਡਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੈ ਨਜਬ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਤਸ਼ੀਲੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਨਜਬ ਭਾਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਹਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। आमिर नज़ीर भाई, बड़ी अजीब बात है कि 17वीं सदी और 18वीं सदी में जो चर्च से मुतनफ़र हुए ना यूरोप में, वो जो नए इनलाइटेंड थे, उन्होंने सूम थ्री पेश की और हिजरत वाली फार्मूला पेश किया इंडिया के रास्ते जो है तिब्बत जाने का। तो यानी कि स्लेब से जो है उतर कर तो जख्मी हालत में उधर जाने का फार्मूला पेश किया। मिर्ज़ा साहब से 100-150 साल पहले की ये चल रही थी, और फिर विक्टोरियन ब्रिटेन में तो ज़्यादा आम हुआ। तो You're under arrest on लिए गए, फिर उनको वो हिजरत की, फिर इधर आए, इंडिया में आए, फिर आगे गए बुद्धिस्ट मंक्स के पास, वहाँ बाकायदा किताब लिखी गई, और फिर जो है वो सारे मामलात नोटविच ने भी कर दिए। आसमानी का इनकार कर दिया उन्होंने। जी 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 जी, अच्छा, उस पर वो चर्च वाले भी, पोप ने भी बड़े बंदे छोड़े पीछे, लेकिन वो बंदे जो है पोप ने कोई काम सही नहीं किया, और बंदे वो यानी कि इधर से पंजाब के रास्ते जो है ना पहुंच गए आगे बर्मा तक और तिब्बत तक, और खबर फैल गई। मिर्ज़ा साहब के आने से यानी कि बहुत अरसा पहले की ये बातें चल रही थी, और नोटविच ने तो बाकायदा फिर वो सफ़रनामा लिखा ना। अब मसला ये है कि तजदीद अगर इस तरह की हो जिससे मुजद्दद बने, तो नोटविच को क्यों ना इन्होंने मुजद्दद माना, ये सवाल है।
ये तजदीद कहाँ पे है? ये जो उसने रिफॉर्म्स की हैं, जरा दिखाएं इसका सबूत। जी मैं इंशाल्लाह इस पर पूरा सबूत पास बुक पढ़ी है आमिर भाई, मैं जो मैं Not किताब a लिख रहा हूं switch ना, की। उसका एक पूरा चैप्टर है, जो किताब में लिख रहा हूँ ना उसका पूरा एक चैप्टर है। ये असल में 12वीं सदी जो है ना, 12th सेंचुरी से ये कट्टा खुल चुका था, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है एक ग्रुप जो है वो सुलग रहा था क्रिश्चियनिटी में, और फिर आकर तो यहाँ 17th और 18th सेंचुरी में तो आग ही लग गई थी ना यूरोप में, छोड़ देना बातें। तो वो मैं इंशाल्लाह मेरी किताब का एक पूरा चैप्टर होगा, तो मैं वो इंशाल्लाह तहकीक पेश करूंगा आपको भी। लेकिन मसला ये है कि नोटोविच के मतलब तो बशीरुद्दीन साहब ने भी, यानी ये कह नहीं सकते ना कि नोटोविच वाला कट्टा इन तक पहुंचा नहीं। उसकी वजह यह है, बशीरुद्दीन महमूद साहब ने भी उस पर लिखा है कि नोटोविच ने ये कहा था कि इधर इंडिया का सफर हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो अगर ये तजदीद है तो इससे बनता है मुजद्दद, तो फिर नोटोविच भी मुजद्दद हुआ, उसके साथ क्यों जुल्म किया गया, उसको क्यों ना मुजद्दद माना गया, ये सवाल है। आमिर भाई मैं बुक सेंड की थी नोटोविच दी। नोटोविच ने मुजद्दद होने का दावा किया सी? नहीं वो करे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानदा सी, हदीस मुजद्ददीन मानदा सी, आयत इस्तखलाफ ते ओदा ईमान सी। नहीं इस तजदीद अकल तो काम लो, दावा भी अकल है, इस तजदीद अपने पर दिमाग दे विच जेड़ा अकल हुंदी है ना ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल भी कदी करया करो। नहीं पर्सनल फिर नहीं, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ नहीं है ਜਿਹੜੀ चीजों मुजद्दिदीन का मजाक उड़ा रहे हैं, आयत इस्तखलाफ का मजाक उड़ा रहे हैं, शातमियत कर रहे कर रहा ना, ठट्ठा शर्म हम करनी चाहिए हमारे इस साथ हुआ शातमियत है। से। हाँ, ठट्ठा हमारे साथ हुआ है, हमने भी तो बर्दाश्त अच्छा आप किया, कर रहे भी हैं, आप हदीस मुजद्दिदीन का मजाक उड़ा रहे हैं। एक क्रिश्चियन जो यसु को खुदा का बेटा बना के बैठा है, उसको आप कहते हैं मुजद्दिद था। वो शर्म करें। आमिर भाई बुक हुए नजर में सेंड की साहब थी। ने भी तो ये दावे किए हैं ना, वो भी शायद उसी से लिए हैं। शातमियत की हद हो चुकी है। नहीं देखिए हम बर्दाश्त करते हैं, आप भी करें ना, आप भी करें ना। देखिए हम भी तो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं ना। मिर्जा साहब ने जितने भी दावे किए हैं जुल्म ही है हम नहीं, आप पर। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी कर रहे हैं कि ये मिर्जा एक साहब ने अल्लाह किए हैं। मान खुदा का शरीक बनाने वाला अल्लाह ताला की तरफ से मुजद्दद मुकर्रर हो गया। कोई शर्म अच्छा है? मुझे ये बता दें, अच्छा तारिक चौहान साहब मुझे ये बता दें, आपने कभी किसी सब्जेक्ट की रिसर्च की है? यकीनन की होगी, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं मुझे, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसकी कोई ज़रूरत महसूस हुई होगी ना आपको तहकीक करने की, तो आपने तहकीक की, ये कोई मुनासिब बात है ना? मुनासिब बात है तारिक चौहान साहब, ये इंसान आप तहकीक अपनी करता बात है। पूरी करें ना, क्या आप कहना नहीं चाहते हैं? आप पहले असूल शातमियत तो आप कर चुके हैं। एक चीज को तस्लीम करते हैं, परेशानी किस बात की है? शात में रसूल, मैं शात कहता में हूँ, हदीस मैं कहता हूँ कि इंसान तहकीक उस शात वक्त में किस आयत बात की इस्तखलाफ। करता है, सुने ना, मैं तो कहता हूँ कि इंसान तहकीक उस वक्त करता है जिस वक्त उसको जरूरत महसूस होती है उस तहकीक की, वरना अहले इल्म और जो शख्स होता है वो कभी किसी ऐसे बात में तहकीक नहीं करता जिसमें नहीं, ऐसे आपकी वक्त से तहकीक तो यहाँ पे खत्म हुई कि एक नहीं, मैं मुशरिक अपनी जो बात था नहीं कर वो रहा, मैं मुजद्दिद अपनी है, बात नहीं कर उसको रहा। मुजद्दिद मान लें, तारिक ये चौहान आपकी साहब- तहकीक है। तारिक चौहान साहब देखें, वो जो मैंने बात की है वो आप समझ गए। अच्छा इसलिए आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा नहीं करते। देखें नहीं गुस्सा जैसे क्या, हम बर्दाश्त गुस्सा कर रहे हैं आने ना, आप वाली भी बात करें। है। देखिए एक तारिक मुशरिक को चौहान आप साहब- मुजद्दिद कह रहे हैं, वो हज़रत नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आपके वसल्लम का लिए खलीफा मुजद्दिद है ना, है, मुशरिक आपके लिए, हमारे लिए नहीं। अच्छा खुदा का खौफ करे कोई। उनकी तजदीद तो ली ना, उन्हीं की तो ली है। म्यूट करें तरीके से सुलझा लेते हैं। तारिक ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਟੀ ਮਸੀਹ जोसेफ मसीह भट्टी ਉਹਨੂੰ बना दो मुजद्दिद ਤੁਸੀਂ। यही सवाल करने लगे चौहान साहब, आज की तारीख में 2024 में आप मान सकते हैं कि मुसलमानों में से जो मिर्जा साहब को सही नहीं समझते, गलत समझते हैं, उनमें से कोई बंदा मुजद्दिद हो सकता है? आप मान सकते हैं? उससे कभी कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो उससे सकता, कलाम कर सकता है? नहीं ना कर सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कोई दावा करता है वो झूठा। ऐसे ही बिल्कुल झूठ है। जो बंदा मिर्जा साहब ने जो दावा किया है ना, असल में वो हमारी नजर में नोटोविच और मिर्जा साहब का दावा मुजद्दिद होने का एक जैसा है।
मतलब जिस तरह वो है हाँ, और आपके मखरज ख्याल में वो निकालने- मुशरिक जो है वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजद्दिद हो सकता है? नहीं ये आपका ख्याल मुशरिक है? नहीं है जो कहता है अंता मिन्नी पे मंजिला तो वलदी, ये क्या है? नहीं, ये तो कोई शिरक नहीं, ये तो बेमंजिलत वलदी यही है। बात है। वो कब मानते हैं शिरक? अपने अमल को कोई शिरक नहीं मानता, वो भी कहते हैं हम कब शिरक कर रहे हैं। तो चले आप उस नोटोविच को मुजद्दिद मान लें। नहीं, हम माने या ना माने, मेरा कहने का नहीं, मतलब आप ये तो है कह रहे हैं वो मुजद्दिद है, तो आप मान लें उसको। कि वो मुजद्दिद नहीं हो मान ही सकता। लिया है तो बल्कि मिर्जा साहब का आपने। भी दावा या जंबा साहब का भी दावा, हम मुसलमानों के लिए तो वैसा ही है ना जिस तरह नोटोविच का दावा है। ये कहना चाह रहे हैं मुसलमान। जी अच्छा मैं भी एक ना नहीं, छोटी सी, आप कह रहे हैं सज्जाद साहब, वो तो सलमान सज्जाद साहब फारसी ने कहा उसको मुजद्दिद लफ्ज़। मान लें, अच्छा आमिर भाई, तो आप मान लें एक उसको मुशरिक। मुजद्दद अपनी जाती रिसर्च ते ना होई, या तो इलामी चीज ना सबको ना एक जैसा ही मानते हैं ना, हम तो सबको एक जैसे मानते हैं। हमें तो ना फोर्स करें कि हम माने। तारिक चौहान नहीं, साहब, आप नहीं मानते हदीस तारिक चौहान हम साहब, में से मानते हैं, ये सब एक जैसे ही तारिक हैं। तारिक हदीस चौहान साहब, मुजद्दिदीन आपने आप नहीं चंद दिन मानते? पहले ये कहा था, हदीस से चंद दिन पहले ये कहा था कि आप अगर हदीस मुजद्दिदीन मानते हैं फिर नोटोविच को मुजद्दिद मान लें। तारिक चौहान साहब, बात हो सकती है आपसे। मुजद्दिद का इल्हाम का दावा करना नहीं हम मानते। हम सब बात समझा। तारिक चौहान साहब, लेकिन ये तो ईमान आमिर भाई ले आए हैं ना, एक ईसाई क्रिश्चियन के बात के ऊपर एक अकीदा बना ली है। मैंने आपको बुक सेंड की है। और तू अपना इमाम लभ जाके इमाम गैब किते गार च वड़िया है उन्होंने लभ जाके किते। तारिक चौहान साहब, बात हो सकती है आपसे, इल्मी बात हो सकती है सब्र के साथ। भाई आपके साथ इल्मी बात क्या हो सकती है? आप हमारे ख्याल में आप काफिर हैं। अच्छा, और सुने आपको ना, सुने ना। 100 साल का अरसा दिया गया, मिर्जा साहब तारिक की चौहान तालीम साहब, आपके सामने मौजूद थी, रूहानी तारिक- खजाइन आपके पास अवेलेबल हैं, आपके ऊपर एक जूं तक नहीं रेंगी, तो मेरी तारिक बातों चौहान से साहब, आपको बात क्या सुने फर्क ना। पड़ेगा भाई? बात आप सुने ना, बात काफिर सुनिए। फासिक हैं, वही रहेंगे। अच्छा, जितनी तारिक मर्जी चौहान आप साहब, ऐसे कर आपने ले, इतनी रिसर्च कर बातें ले, मुझे कहीं आप देखें, फासिक मैंने ही सब्र रखा है रहेंगे। ना। तो मेरा देखिए- सर खाने का क्या फायदा? अच्छा सुने ना, ये अभी आपने जो मेरा सर खाया, देखिए मैंने बर्दाश्त किया है, तो नहीं, तो मैं तो आपसे गुफ्तगू ही नहीं कर रहा, आप मुझे खुद मुखातिब कर रहे हैं। जी, मैं तो तो आपको नहीं आप ग्रुप में ना हैं, तो मैंने मेरा आपको हक है मिर्जा मुखातिब साहब की करना। तालीम पेश की है, ना मैंने आपको तबलीग की है। मैं नहीं, तो कहता हूँ करने आप जोगी होती तो करते बिल्कुल ना आप। मिर्जा साहब के करीब ही ना जाएं, आप इस काबिल ही नहीं है, वो करने जोगी बल्कि नहीं उनकी थी, आप किताबें क्या भी ना करें? पढ़ा करें। अच्छा, अब मसला है, तारिक चौहान साहब मेरी बात सुन लेना, देखिए मेरे साथ कोई मसला नहीं है, जिसके साथ नहीं। मर्जी आप बात करें। अच्छा, थोड़ा सा मौका दीजिए भाई। अच्छा, एक सेकंड मुझे खत्म कर लेने दे बात। एक तो तारिक चौहान साहब, मैं आप तस्हीफ फरमा लें आप थोड़ी सी, कि मैंने जो कहा ना कि आप नोटोविच को मुजद्दिद मान लें, तो आपके भाई असूलों साहब, के तहत- तारिक चौहान साहब से आपसे बात ही नहीं करना चाहते आप। आप जरा खामोश हो तारिक जाएं। चौहान जी, साहब, बर्दाश्त तारिक करें चौहान ना, साहब, अकबर तारिक चौहान साहब। साहब। वो अकबर खान साहब क्या हो गया, खान होकर इतनी यार वो आपसे ही इज नॉट इंटरेस्टेड अच्छा। टॉक टू यू। अच्छा, मैं आमर नजीर भाई से बात कर रहा हूँ। बिना गर्म नहीं होता। आमर नजीर भाई से बात कर रहा हूँ। आमर नजीर भाई, देखें मैंने एक इनके यहाँ जो असूल है ना वो पेश किया, कि देखें इनके यहाँ मुजद्दद बना किस तजदीद पर, कि हिजरत हुई जी जख्मी होकर, ये तजदीद पेश की ना, ठीक है जी, आकर कश्मीर में ठहरे, इंडिया में आ गए। तो मैंने कहा देखें अगर ये तजदीद है तो उनसे पहले जिन्होंने ये तजदीद पेश की है, इनकी इस्तिलाह में जो तजदीद है, तो फिर उसको क्यों नहीं ये मानते? अच्छा, मैंने तो नहीं कहा कि हम मानेंगे, हम तो दोनों को काफिर मानते हैं। अच्छा, इनको भी और उन नोटोविच को भी, लेकिन जो नोटोविच ने पेश किया, और जो नोटोविच के जो जिनका सबॉर्डिनेट था, उन्होंने जो 17वीं सदी से पेश करना शुरू किया, जिसका जो आके तो पोप के खिलाफ जो खुलासा नोटोविच ने पेश किया, और पूरा कैथोलिक चर्च उसके पीछे लगा हुआ था। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो वही बात मिर्जा साहब पेश करें, तो ये कहते हैं कि जी ये तजदीद है बड़ी, और इससे को बड़े बड़े मकाम पर मिर्जा साहब पहुंच गए। तो मिर्जा साहब से पहले जिन्होंने उसको पेश किया, तो उनको ये माने फिर इनके असूल के तहत, कि हम तो दोनों को काफिर मानते, हमें तो ये कह नहीं सकते ना। तो मैं ये वजाहत करना चाह रहा था। जी आमर नज़ीर भाई, असल में अंदाज़ा हो गया कि पैगाम पहुंच गया मेरा, क्योंकि आगे से जो रिएक्शन आया ना, इनको इन तक पैगाम जो पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया। बाकी इनकी नसीब मुकद्दर है, हदायत देना हमारा काम नहीं है। आप जारी रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। साहब आपको टाइम चाहिए? जी, आमिर रज़ी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
टाक मास्टर जी खैरियत है? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आज जो है मैंने जो टॉपिक रखा हुआ है, आप बाद में आए हैं, हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। टॉपिक ये था कि मिर्ज़ा जी कुछ और बता रहे हैं और मिर्ज़ा जी के मानने वाले कुछ और कर रहे हैं, और मिर्ज़ा जी मुसलमान को, कलमा गो को, मन सल्ला सलातना मुस्तक़बल क़िबलतना वकला ज़बीहतना, उसको काफिर मुर्शिक कह रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा जी के मानने वाले का दावा यह है कि किसी कलमा गो को काफिर नहीं कहा जा सकता। इसकी दलील मैंने कायम किया है मलफूज़ात जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 208, जिसमें मिर्ज़ा जी ये लिखते हैं, तमाम फैज़ों का सरचश्मा कुरान है, तमाम फैज़ों का सरचश्मा कुरान है, ना इंजील है ना तौरात। जो कुरान को छोड़कर इनकी तरफ झुकता है सिर्फ, वो मुर्तद है और काफिर। देखें मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं कि सरचश्मा कुरान है, तौरात नहीं, इंजील नहीं। मिर्ज़ा जी के मानने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के बारे में उनका ये अकीदा है कि वो सूली पर चढ़ाए गए लेकिन वफात नहीं पाए, और 3 दिन पता नहीं क्या हुआ और ये, और कश्मीर चले गए और वहाँ पर 120 साल की उम्र पाई और फिर वफात पा गए। ना ये कुरान से साबित है ना ये हदीस से साबित है, बल्कि ये अनाजील से आप लेते हैं या किसी और कुतुब से लिखते हैं। तो आपने सरचश्मा नहीं माना कुरान और हदीस को। कुरान आपके लिए तमसीली कलाम है, ये तमसीली रंग में बताया है, लेकिन बाकी जो किताबें हैं वो जो बताएं वो बिल्कुल सही है, वैसे जैसे बताए, वो तमसील उनमें नहीं है। तो ये अकीदा जो कायम किया गया है, ये एक अकीदे का जिक्र हुआ हज़रत ईसा के वफ़ात का या हज़रत ईसा के कत्ल और सलीब पे चढ़ने का, कुरान से नहीं लिया मिर्ज़ा जी के मानने वालों से। एक तो ये बात, जो कुरान से ना ले उन पे क्या फतवा है मिर्ज़ा जी का मुर्तद और काफिर का, जबकि हम मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वअकला ज़बीहतना, ये तीनों चीज़ें करते हैं। अब ये कहना मिर्ज़ा जी के मानने वालों को कि आप कैसे कह सकते हैं अहमदियों को काफिर, भाई मिर्ज़ा जी कह रहे हैं, तो ये इस्तदलाल दोनों बातिल हैं। हमने इस पे सैर हासिल गुफ्तगू की है, अगर आप लोग इस पे बात करें तो बहुत अच्छा होगा। जी इस पे जो मैंने पॉइंट पेश किए थे वो भी आपने बता देना था। हाँ, हमने और आपने तो बात की है, फिर हिस्सा ले लेंगे। मैंने कहा आपने अपना मौक़िफ़ तो बता दिया, आपने मेरा मौक़िफ़ भी बता देना था। मुख्तसर ये कि हम जो लेते हैं वमा कतलू मा सलबुहु से ही हम इस्तदलाल करते हैं कि ना तो उनको कत्ल किया गया, यानी कत्ल की यानी कत्ल करने के इरादा उनका था या कत्ल करने की कोशिश भी की गई लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, और ना ही सलीब पर मारने में कामयाब हुए। और ये दोनों बातें हम कुरान से ही लेते हैं, वमा कतलू वमा सलबुहु। तो हम कुरान को नहीं छोड़ते। बाकी वो जो तफसील है ना तो वो आपको पता है ना हमें पता है। वो इंजील में कुछ लोग आपके अपने मुफस्सरीन ने ली इंजील से, वो आपने बयान की। मिर्ज़ा साहब ने जो बयान किए, मिर्ज़ा साहब ने कहा ये अमर मुझ पर खोला गया है अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए उन्होंने इंजील को ईसाइयों के लिए तो हुज्जत के तौर पर पेश किया, लेकिन वो जो उन्होंने बात बताई वो मैंने आपको हवाला भी भेजा है। वो उन्होंने वहाँ पे बड़े वजाहत से बताया कि ये सारी बातें कि वो वहाँ से सलीब से बच गए और फिर उन्होंने सफ़र अख्तियार किया, कश्मीर तक पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने अपना मिशन पूरा किया, तबलीग की और फिर वहाँ पे वफ़ात पाई। ये सारी बातें मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बताई गई। ये है उनकी वजह। उन्होंने ये इंजील को अपना नहीं बनाया मतलब बुनियाद, बल्कि अपनी वही को इसकी बुनियाद बनाया। लेकिन इंजील
کو وہ تائید کے لیے پیش کرتے ہیں، اور خاص کر عیسائیوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کفارہ کا عقیدہ ان کا اسی کے اوپر بیس ہے کہ وہ صلیب پر ان کی موت ہو گئی۔ تو مرزا صاحب نے عیسائیوں کو اس کو جواب اس چیز کا دیا ہے، اور لیکن یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے نا کہ وہ محلہ خان یار میں وہ ان کی قبر ہے کشمیر تک، یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولی گئی ہیں میرے اوپر۔ جی وہ اسکانی بھائی جو آپ نے شعر حاصل گفتگو کی تھی اس کا کیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا جو اب دوبارہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا آپ سے، کیا قرآن میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی زندہ شخص کو متوفی کہا گیا ہو؟ جی دیکھیں ٹاک ماسٹر جی، سیر حاصل ہم نے گفتگو تو کی، لیکن آپ لوگ اس پہ گفتگو کریں، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں۔ سرچشمہ ہے قرآن، تورات انجیل نہیں۔ آپ لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ انجیل ہی سے لیا، دوسرے کتب سے لیا۔ جو یہ کرے وہ مرتد اور کافر ہے، یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن میں تفصیل بتا دی ہے، مکمل بات بتا دی ہے، لیکن مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے سمجھایا۔ وحی کی کہاں ہے وہ سمجھانا؟ اس کا متن کیا ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تھا چوہان جی سے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مرزا جی پہ وحی کی تو وہ متن کہاں ہے؟ بعد میں انہوں نے اس بات کو مانا کہ نہیں کوئی وحی کا متن نہیں ہے، لیکن کھولا مجھ پہ انشراح ہوا۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہیں۔ ایک بات یہ کہ مجھے انشراح ہوا، میں نے کوئی چیز دیکھ لی، انشراح کا مطلب یہ کہ مجھے انشراح ہوا، کھل گیا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے، وہ وحی نہیں ہے۔ آپ کی کسی عبارت کو میں پڑھ کے مجھے انشراح ہوتا ہے، میں بتا دیتا ہوں، وہ وحی نہیں ہے، وہ میری سمجھ ہے۔ تو وحی کوئی نہیں ہوا مرزا جی پہ کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہے، بلکہ وہی نبی علیہ السلام پہ ہوا۔ وما قتلوہ، قتل نہیں ہوئے، وما صلبوہ، صلیب نہیں ہوئے۔ ہوا کیا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ یہ اللہ نے بتا دیا، نہ قتل ہوئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے اٹھایا۔ چوہان جی نے یہ کہا کہ بھئی ایک پلان بنا ہوا تھا، جس طرح سے وہ ٹرمپ جی آئے تھے تو لوگوں نے گولی چلایا، لگی نہیں، بچ گیا، ایسا ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ مثال جو آپ دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی تو سن لیجئے۔ آپ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آسکانی آئے گا میں قتل کر دوں گا، میں آیا ہی نہیں تو آپ نے خامخواہ گولی چلایا۔ اس طرح کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ایک پلان بنا ہے کہ قتل کریں گے، سولی پر چڑھا دیں گے، یہ بنا ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن ہوا ہی نہیں۔ پیر صاحب ٹرمپ کا مثال آپ نے دیا تھا، چوہان صاحب نے نہیں دیا تھا۔ نہیں آپ پوچھ لیجئے، پہلے چوہان جی نے نہیں میں نے دی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آیا ہی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے نکالا بھی؟ یہ آپ کا صرف خیال ہی ہے نا کہ جو آیا نہیں، یہاں لکھا تو کوئی نہیں ہوا۔ تو اسی سے آپ استنباط لے کے یہ بات بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کہانی بنا رہے ہیں۔ ہم اسی سے استنباط یہ بیان کر رہے ہیں، نہ ان کو قتل کیا گیا، یا قتل سے مرے، نہ ہی صلیب کی وجہ سے مرے، یہ ہم اسی سے لے رہے ہیں۔ یہ قرآن ہی ہمارا سرچشمہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چوہان جی میں نے اس بات کو یہ نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے اس مثال کو باطل کیا۔ آپ نے یہ کہا کہ قتل کا پلان بنا ہوا تھا، آپ لوگوں نے کہانی بنا ہوا ہے کہ نہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ جس طرح سے قتل کا کوئی پلان ہے، جس طرح ٹرمپ پہ گولی چل گئی، وہ مرا نہیں الگ بات ہے، لیکن گولی تو چلی۔ میں نے کہا درست ہے، آپ نے صحیح مثال دیا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ لو، ٹرمپ پہ تو گولی چلانا تھا آسکانی نے، لیکن ٹرمپ آیا ہی نہیں، تو گولی کیسے چلا؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں والی بات کہاں سے نکالی؟ تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ٹرمپ اور اسکانی کہاں سے آ گئے؟ بھائی جان یہ تو ڈالا ہے چوہان جی نے نا۔ اچھا اچھا، چوہان جی یہ نہیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایسے ہی جیسے قتل کی اٹیمپٹ کی ہو لیکن قتل نہ کیا ہو تو ہم کہیں وہ قتل نہیں ہوا، ایسے ہی سلیب کی اٹیمپٹ کی ہو، سلیب پہ نہ مرا ہو تو ہم کہیں گے اس کو سلیب نہیں دی گئی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، قرآن سے نکال رہے ہیں نا ہم۔ آپ کہتے وہ آیا ہی نہیں، وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ آیا ہی نہیں وہاں پہ؟
नहीं, ये कहाँ से निकाल रहे हैं कि चढ़ाया गया मरा नहीं? कहाँ से निकाल रहे हैं? ये वमा कतल हो वमा सलबू हो, कत्ल नहीं हुआ, सलीब नहीं दिया गया। सलीब पे नहीं मरा, कत्ल से भी नहीं मरा, सलीब से भी नहीं मरा। सलीब पे नहीं, मेरा अल्फाज कहाँ है चौहान जी? तो आपके कहाँ से अल्फाज है जब आप कहते हैं वो आया ही नहीं? मैं तो ये नहीं कहाँ ले से रहा अल्फाज हूँ, है? मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ वमा कत्ल, तो आप कत्ल यही नहीं तो हुआ, अभी वमा बयान कर सलबू। रहे हैं, अब वो कोई आया ही नहीं वहां पे, तो भाई वो कहाँ तो- लिखा है वो आया ही नहीं? ये तो आपने वो तो कहानी बनाई है। आपके उस मिसाल को मैं बातिल कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि नहीं प्लान नहीं, वो बनाया था बातें लेकिन कैसे मरा होती नहीं। है? हम तो कुरान की बात कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कत्ल हो सलब हो से दोनों बातें मैं कुछ और ले रहा हूँ, आप कुछ और ले रहे हैं, तो है लेकिन तो आप जो कुरान ही आप जो चश्मा ले ना। रहे हैं ना मोहतरम चौहान जी, आप जो ले रहे हैं वमा कतलू, हम ले रहे हैं कत्ल नहीं हुआ, इतना ही लिखा हुआ है। वमा सलबू, सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, कत्ल यही नहीं लिखा हुआ हुआ है ना। या कत्ल से नहीं मारा गया, माँ सलब हो सलीब से नहीं मरा, ये दोनों बातें बस इसमें ठीक है। मौजूद है। नहीं, नहीं मरा नहीं, वमा सलबू, सलीब नहीं दिया गया। अब भाई यही तो हमारा इख्तलाफ है। आप उसी आयत से ये किस बात और कर रहे हैं, हम उसी ठीक से है, एक मेरी और आपकी बात तो कर रहे बात हैं। हो गई है ना काफी, बाकी दूसरे बातियों को नहीं बात नहीं, करने लेकिन तो वो दीजिए। टाक मास्टर साहब ने भाई, तुमने सुनी हमारी अफगानी इत्तला। भाई, अफगानी भाई, वो सलीब नहीं हुए, वमा सलबू हो, वो सलीब नहीं हुए। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उनको सलीब पे चढ़ाया ही नहीं गया? बात ये है कि अगर एक आदमी को फांसी की सजा होती है और लोग उसको फांसी घाट ले जाकर फांसी पर लटकाते हैं, मगर वो रस्सी टूटने की वजह से बच जाता है, फर्ज किया किसी वजह से बच जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो फांसी हो गया? क्योंकि अगर हम कहें कि फांसी हो गया तो इसका मतलब है कि वो डेड हो गया, फौत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो फांसी नहीं हुआ। वमा सलबू हो इसी मायनों में आता है कि उनको सलीब नहीं हुई। अगर इसमें अगर कोई ये दावा करता है कि वो सलीब पर चढ़ाए गए थे मगर फौत नहीं हुए, तब भी वमा सलबू हो ठीक बैठता है। और ये भी ठीक है कि अगर उनको सलीब पर ले जाया ही ना गया हो तो तब भी वमा सलबू हो, दोनों तरीकों से ठीक है। सीधी सीधी सी बात है। मैंने ये आपसे पूछा था, ये मुझे मालूम नहीं है कि कुरान में कोई ऐसा है कि मुतवफ़ी का लफ्ज़ जो है किसी जिंदा के लिए इस्तेमाल हुआ हो, वो भी बता दें। अब वो बता देंगे, लेकिन आप बात को वहां मत लेकर जाएं। बात जितनी है उतनी ही बात करें। बात यह है कि वमा कतलू हो, कत्ल नहीं हुए, वमा सलबू हो, सलीब नहीं हुए। कुरान ने यह बता दिया। हुआ क्या? बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया। अब आप ये कहाँ से ले रहे हैं? वमा कतलू, कत्ल नहीं हुए, वमा सलबू, सलीब पर नहीं मरे। ये मरने से कहाँ ले रहे हैं? आप कहाँ से ले रहे हैं कि बराफियों का इलैया का मतलब है जिस्मानी तौर पर ले गए? तो आप फिर मतलब उस पर बात करना नहीं चाहते? नहीं, तो कोई जिस्मानी मसला तौर पर कहाँ ले गए ना, आप मुझे बताएं ना, कहाँ लिखा है कि जिस्मानी तौर पर ले गए? नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप नहीं, उल्टा सवाल आप कर जो रहे हैं। कह रहे हैं कि वो नहीं मरे, वो सलीब पर गए थे, नहीं मरे या नहीं वो फौत कुरान में हुए। लिखा हुआ है ना भाई मास्टर जी, वमा कतलू। अब तो कुरान में ये भी लिखा हुआ ना कि बराफियों का इलैया, तो आप मुझे ये बताएंगे कहाँ लिखा हुआ है कि वो जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला ने उठा लिया? ये तर्जुमा मुझे दिखाएं कुरान से। तुझे अपनी तरफ से उठा लूंगा, हम तो इतना हाँ, ही तो करते वो तो सबको अपनी तरफ उठाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस्मानी तौर पर उठा कहाँ लिया कि उठाता है? मुझे दिखा दो कि आपको भी अपनी तरफ उठाता है, बताओ कहाँ लिखा हुआ है? नबी को अपनी तरफ उठाया दिखाओ, किसी एक का मिसाल पेश करो कि पिलाना को अपनी तरफ उठाया, दिखाओ। सबको ही उठाता है अपनी तरफ। दिखा तो दो ना, उठाता है सबको, दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है? चौहान साहब दिखाओ जरा, मैं तो अभी फिलहाल नहीं दिखा सकता। देखा भाई, जितनी बात भाई देखा कुरान- क्या? आप मुझे ये बताएं कि आपका दावा है कि जिस्मानी तौर पर उठा लिया, वो दिखाएं। मेरा दावा वही है जो कुरान में है। आपका दावा वो है जो कुरान में नहीं है, जो कुरान में दिखाएं तौरात जिस्मानी में। तौर पर। जी और भाई कुरान में जिस्मानी तौर पर उठाना दिखाएं। भाई, मैंने कब कहा जिस्मानी तौर पर? हाँ, तो कैसे मैंने कहा उठाया? मेरा वही दावा है जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हाँ, जी, आप ठीक इसको है। जितना करो दे। अच्छा, बस आप इतना मुझे ही। आप ये नहीं, आप- मेरा 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 आप कहना ये- सिर्फ इतना है मास्टर जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है, मिर्जा जी का ये बयान है
کہ تمام فیضوں کا سرچشمہ قرآن ہے، نہ انجیل نہ تورات. آپ تورات سے کیوں لے رہے ہیں ایک کہانی، اور جو تورات سے لے گا وہ مرتد اور کافر ہے. مرزا جی کہہ رہے ہیں وہ کہانی جو آپ کہتے ہیں تورات وہ صلیب پر نہیں مرے، صلیب پر نہیں مرے لیکن دے دیا گیا، کہاں سے لیا آپ نے؟ تو انجیل سے لے رہے ہیں نا. اچھا تو آپ کو حدیث دکھاؤں کہ ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک اور حدیث بھی دکھاؤں آپ کو کہ یہ جو شب لہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور بندہ اس کی جگہ جو ہے وہ چڑھا دیا گیا تھا. تو وہ میں حدیث دکھاؤں، پھر وہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کو کافر کہہ دیں آپ. اچھا آپ ذرا دکھا دیجئے کہ حدیث میں یہ ہے کہ کسی اور کو قتل آپ سے کر بھی نہیں ہے، میں نے اپنی حدیثیں آپ کے پاس ایمانتاً رکھوائی ہوئی ہیں. میرے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، میرے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بھائی. حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے نا، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، میں ڈھونڈ کے دے دوں گا. ٹھیک ہے جی عامر صاحب. شب لہم کا جو ہے وہ حدیث دے دوں گا میں، کہ جس میں حدیث ہے کہ ان کی جگہ کسی اور شخص کو چڑھا دیا گیا تھا، اور یہ کہ ہوا جو تھی وہ آدم کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی. ٹھیک ہے وہ آپ دے دیجئے، دیکھ لیتے ہیں. جی عامر صاحب. دونوں میں چیزیں دے دوں گا. نہیں یہ بات تو لیکن یہ بات کہ بھی آپ نے تورا سے لے لیا ہے، تو وہ مجھے بتا دیں کہ تورا سے کس نے کہاں سے لیا. یہ بات، یہ واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ کہاں سے آیا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، اتار لیا گیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اس کو چھوڑیں آپ نا، میں نے جو کہا ہے وہ میں نے اس حدیث کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے تو حدیث میں یہ کہا ہے کہ وہ جو شب لہم کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گی کہ وہ نہیں حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ بات انجیل برناباس میں ہے. نہیں محترم وہ انجیل برناباس میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. چلیں میں وہ ڈھونڈ کے آپ کو دکھاؤں گا. اور وہ پسلی والی حدیث جو ہے کون سی پسلی والی؟ کہ ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا گیا تھا. اس کے لیے بھی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث ہے کہ حدیث نہیں میرے ہے؟ علم میں اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. وہ یار آپ کے علم میں نہیں ہے. جمشید اور جنید جمشید نے حدیث کا حوالہ دینے کے بعد یہ بات کی تھی کہ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اوپر سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو عورت جو ہے نا وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے پہلے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ بتائیں اپنا. طاق ماسٹر صاحب حدیث کا مسئلہ بتائیں، کوئی نہیں ہوتا ہے. نہیں بھائی آپ کے ساتھ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں اس پر مسئلہ بتائیں نا آپ. اس کو حدیث سے کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، حل کر لیتے ہیں اس مسئلے کا کہ پسلی سے پیدا ہونی پر. نہ بھی پر کریں تو آپ نے جو کہہ دیا وہ 16 نے سچ مانتا ہوں. سوال جو ہے نا پہلے جس پر جو انہوں نے موضوع رکھا ہوا ہے، آپ موضوع سے دائیں بائیں نہ ہوں. موضوع انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں موضوع کے آج کا بارے میں موضوع یہ ہے بھائی وہ کہتے ہیں کہ جو تورات سے بات لے وہ پتہ نہیں کیا کافر ہو جاتا ہے کہ کیا کہتا ہے. ہاں وہ تو مرزا صاحب کی بات مرزا صاحب کا ان پر اپلائی ہوگا. طاق ماسٹر صاحب یہی بات میں آپ کی تصحیح کرنے لگا تھا. جس بندے نے فتویٰ دیا نا اب اس کو ہم پر اپلائی نہ کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں حدیث میں لکھا ہے تو وہ کافر ہوگا. وہ مرزا صاحب کے فتوے سے آپ انہیں بھلے کافر مان لیں، وہ ہم پر اپلائی نہ کریں. ہم اس فتوے کے بند نہیں ہیں. اچھا ٹاک ماسٹر صاحب، وہ جو آپ سے پیر اسکانی صاحب پوچھ رہے تھے نا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تو وہ انا للہ ہے، یہ بات نہیں انا ہے. للہ ہے و انا الیہ راجعون. ایک منٹ، یہ رتبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ برافع اللہ، یعنی کہ میں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا وہ تو سب کو اٹھاتا ہے، تو وہ کہتے بتائیں کہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنی طرف اٹھاؤں گا. ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے انا للہ ہے و انا الیہ راجعون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور سب کچھ نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے. ہیں. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے. ہاں تو ہم نے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ کس حصے کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہیں؟ ٹروت سکر انا للہ ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں.
अच्छा खैर, नहीं, अल्लाह की तरफ से आए हैं, कहाँ लिखा हुआ है भाई ट्रुथ सीकर? पूछ लें ना, इनसे पूछ लें, पीर काली साहब से पूछ लें। नहीं इन्ना लिल्लाह आपने पढ़ा है, आपने तर्जमा किया, ये किस हिस्से का तर्जमा है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं? वाह इन्ना इलाह राजिऊन की बात हो रही है। हम वो ठीक है, हम अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, ये ठीक हम है। अल्लाह की तरफ से हैं या अल्लाह को बिलोंग करते हैं या अल्लाह के लिए हैं, वो बात एक ही है, उससे आगे है। और अल्लाह अच्छा, की एक तरफ बात है, हमारे एक साथी हैं, वो बड़े इस बात पे नाराज होते हैं आगे। या जब आप फिक्रा बोलते हैं ना, एक मिनट आमिर नजीर साहब, आखिरी लफ्ज आपने लंबा नहीं करना। आमिर नजीर साहब, आपसे बात नहीं करनी, मैं पीर काली साहब से बात करने आया था। और हाँ ठीक है, करें, लेकिन सिर्फ हमारे कानों पर रहम करें, आखिरी लफ्ज लंबा ना खींचे, बस इतनी सी गुजारिश है। अच्छा जी, पीर काली साहब ये बता देना फिर, हम अल्लाह ही की तरफ से हैं या अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही से हैं और अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह ही से हैं, बिलोंग द अल्लाह टू अल्लाह वी बिलोंग। ये ठीक है, हम अल्लाह ना अल्लाह की तरफ से आए हैं, ना अल्लाह ही से हैं। अल्लाह से तो कोई चीज नहीं है। हम अल्लाह के लिए ही हैं या हम अल्लाह की तरफ से ही हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। यार आप ये सिर्फ मिर्जा साहब हैं जो अल्लाह के पानी से होने का दावा करते हैं, हम में से कोई अल्लाह में से नहीं है। आमिर नजीर साहब, उनसे बात करने दें, आप खामोश हो जाएं 2 मिनट। ये सिर्फ मिर्जा अच्छा, साहब का बात ये दावा है है कि मैं अल्लाह के पानी से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ वापस जाना है, यही जिक्र हो गया ना यहाँ पे? हाँ ये जिक्र हो गया कि हमने अल्लाह की तरफ ही वापस जाना है, मगर हाँ जी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा, या हमने उसका क्या मतलब है? या ये टाट मास्टर साहब, जो मौजू है उनके प्रोग्राम का, जो उनकी ब्राड का मौजू है, उसको ख़राब ना करें प्लीज़। मौजू ये है कि ये बात कहाँ लिखी हुई है कि उनको सलीब देने की कोशिश की गई, ज़ख्मी बेहोश हालत में उतार लिया गया, ये कहाँ लिखी हुई है? बस ये मौजू है। उसका जवाब दे देना। कुरान इसका सरचश्मा है। कुरान के सरचश्मे से ये बात कहाँ से निकलती है, कौन सी आयत से निकलती है? उन्होंने कोशिश की सलीब देने की, ईसा अलैहिस्सलाम को बेहोशी की हालत में या ज़ख्मी हालत में उतार लिया गया। ये ना कुरान में है ना हदीस में है। कुरान में मुतलकन नफ़ी है इस बात की कि उनको सलीब दी ही नहीं गई। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सलीब दी गई। वलाकिन शुब्बिह लहुम, बल्कि मामला उन पर मुश्तबे हो गया। अच्छा चलो ठीक हो गया। कुरान में ये कहीं भी नहीं मिलता कि उनको सलीब से बचा लिया गया, ये नहीं लिखा हुआ। बात खत्म। अब आप क्या चाहती हैं तो आगे? इसका मतलब है कि कुरान सरचश्मा नहीं है ना, फिर इनका सरचश्मा कोई और है। वो वजह क्योंकि कुरान में से आप मान रहे हैं कि कुरान में ये बात नहीं है। हाँ, तो अगर कुरान में नहीं है तो कुरान से बात नहीं ली गई है, तो कुरान सरचश्मा ना रहा, इनका सरचश्मा कोई और हो गया। अच्छा Am I right? इनका सरचश्मा क्रिश्चियनिटी है, इनका सरचश्मा बाइबल है, इस्लामी माखज़ इनका सरचश्मा नहीं है। हाँ, तो बाइबल से कोई बात लेना जो है वो गुनाह है, बंदा काफिर हो जाता है। बाइबल से बात लेना क्या करते हैं आप? बंदा काफिर हो जाता है। मिर्जा जी यही कह रहे हैं। और अहमद नजीर भाई आपके माइक को मैं 1 मिनट म्यूट करता हूँ, मैं जरा बाहर वेबसाइट मैंने कर दिया है। इसकारी साहब, ये उसी इबारत की आप बात कर रहे हैं? जी, जिस पे सुबह गुफ्तगू हुई थी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने वो देखी है वो इबारत, वो पूरा मजमून आपके सामने नहीं है। ये कहाँ से आपको स्कैन मिला है? ये तो आप मेरे सामने पूरा एक मिनट मंसूर भाई, जब मजमून से हासिल वसूल है ना,
उसका लुब्बे लुबाब आप बता दें ताकि फिर आगे बात चले। नहीं, मैं वो मैंने स्कैन देखा था, मैंने उसको वो एडिशन भी निकाला था। स्कानी साहब, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपके पास पूरा मजमून क्यों नहीं है, सिर्फ एक पेज ही क्यों है? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं इस पेज की बात कर रहा हूँ, इस बात की इबारत की बात कर रहा हूँ जिसमें मिर्ज़ा जी ये लिखते हैं, और मैंने ये पूरा पेज मेरे पास मौजूद है और मुकम्मल बात भी पढ़ी है चौहान जी ने। फिर आपके सामने पढ़ने के लिए तैयार हूँ कि तमाम फैज़ों का सरचश्मा कुरान है। एक बात, ना इंजील ना तौरात, इंजील भी नहीं है, तौरात भी नहीं है, सरचश्मा तो कुरान है। जो कुरान को छोड़कर उनकी तरफ झुकता है, यानी इंजील और तौरात की तरफ झुकता है, वो मुर्तद और काफिर है। ये मिर्ज़ा जी का कहना है। अब दो चीज़ों का, दो जो आपके अकीदे हैं, मैं उनको रद्द कर रहा हूँ मिर्ज़ा जी के फतवे पे। एक ये कि आपका ये अकीदा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूली तो दे दिए गए थे लेकिन वहाँ वफ़ात नहीं पा गए, ये आपने लिया इंजील से, कुरान से नहीं लिया, कुरान में नहीं है ये। फिर 120 साल की उम्र पाकर और पता नहीं कहाँ पर मदफून है कश्मीर जहाँ भी, ये आपने कुरान से नहीं लिया। जो कुरान से नहीं लेता। मंसूर भाई, ये क्या ये अकीदा है हमारा? नहीं, उनको बात कंप्लीट कर लेने दे, एक मिनट में। अच्छा, आगे ये कुरान से आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान से नहीं लिया। कुरान में सिर्फ इतना है, कत्ल नहीं हुए, सलीब पर नहीं चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया। मुकम्मल बात कुरान ने ये बता दी। बाकी जितनी भी तफसील जो आप पेश करते हैं और उनको मानते हैं और मनवाने की कोशिश करते हैं, वो कुरान से नहीं है, इंजील से है, बरनबास से है, किसी और कुतुब से है, किसी और तहकीक से है। इस बिना पर मिर्ज़ा जी कहते हैं वो शख्स मुर्तद है। आगे ये जो आप लोग कहते हैं कि भाई हमें अहमदियों को कैसे तुम काफिर कह सकते हो, जबकि मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना वअकल ज़बीहतना, वो मुसलमान है, आप ये कहते हैं। भाई मिर्ज़ा जी कैसे यहाँ पर फतवा दे रहे हैं उस शख्स पे जो नमाज भी पढ़ता है और किबला रुख भी होता है और मुसलमानों का ज़बीहा भी कहता है, लेकिन यह है कि उनका झुकाव तौरात की तरफ है और उसने अकीदा उधर से ले लिया, उसको मुर्तद कह रहे हैं। तो ये जो इस्तदलाल आप कर रहे हैं, ये इस्तदलाल भी आपका बातिल है। वरना आप ये दावा कर दें कि आपको ज़्यादा मालूम है, ये हदीस नहीं जानते थे या इस हदीस को नहीं माना मिर्ज़ा जी ने। अगर नहीं माना तो आप क्यों मानते हैं, क्यों पेश करते हैं? तो दो अकीदे, जो दो बातें आप लोग करते हो, दोनों हमारी तरफ से नहीं बल्कि मिर्ज़ा जी की तरफ से बातिल और गलत साबित होते हैं। ये है मेरा दावा। जी ठीक है स्कानी साहब, आपके पास चूँकि वो एक पेज है, उस पर पूरी बात नहीं लिखी, आपने बात कंप्लीट की है, तो मैंने वो मुझे नहीं पता आपको वो कहाँ से सिर्फ एक पेज मिला है। वो पूरा मजमून ऊपर से शुरू हो रहा है और उस पूरे मजमून को पढ़े, उस मजमून के तहत वो चीज़ जो उस मजमून से रिलेटेड है, फिर अब आप जो उन्होंने सारी चीज़ें कुरान से पेश की हैं और उस सारी चीज़ की तहकीक की है और कुरान मजीद से सारे सबूत दिए हैं, तो उनको आप फिर टोटली या तो फिर इग्नोर कर रहे हैं। वो जब कह रहे हैं कि वो सब तमाम जो है वो सरचश्मा कुरान मजीद है, तो वो कुरान मजीद से पेश भी करते हैं वो सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, वो कुछ चीज़ें जो बाइबल से या इंजील से पेश करते हैं, लेकिन वो उसके मुताबिक वो जो उन्होंने कुरान मजीद के से जो चीज़ें पेश की हैं, आप उनको भी तो देखें ना। अब वो एक मुख्तसर सी बात को, बाकी भी सारा मजमून अगर आप इग्नोर कर दें तो वो मेरा ख्याल है कि वो इंसाफ नहीं होगा। तो वो मुकद्दम, वो तो खुद कहते हैं कि जिसने कुरान को इज़्ज़त नहीं दी वो आसमान पे इज़्ज़त नहीं पाएगा। तो ये है कि वो चीज़ें आपको वो दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी, सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि वो इसी के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक आप को कह के उनका ये
بائبل سے لے رہے ہیں، وہ چیزیں جو بائبل سے لی ہیں انہوں نے باقی قرآن مجید کو دیکھ کے وہاں سے پروف بھی کیا ہے، تو وہ چیزیں بھی رکھی ہیں سامنے. تو یہ میرا جواب ہے. لیکن وہ پورا مضمون اوپر 2-3 صفحے اوپر سے چل رہا ہے، اس کو بھی میرا خیال اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکین لگا دیتا ہوں آپ کے سامنے. منصور بھائی آپ نے اپنی بات مکمل کی؟ جی میں نے کر لی. جی منصور بھائی آپ پوری کتاب ہی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مضمون ہے بتائیں آپ. اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے سے پیش کیا، بتائیے کہاں سے پیش کیا قرآن مجید سے؟ کہ صلیب پر تو چڑھایا لیکن مرا نہیں، دکھائیے قرآن سے. نہیں میں اب میری بات تو سنیے نا بھائی. ٹھیک سوری منصور بھائی میری بات تو سنیے. اگر مرزا جی نے اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہی سے آپ کا عقیدہ ہے تو وہ دکھائیے قرآن سے کہ چڑھائے تو گئے تھے سولی پہ لیکن وہاں نہیں مرے، دکھائیے قرآن سے. نہیں ہے تو کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ آپ بتا دیں. دوسری جگہ انہوں نے دلیلیں دی ہیں، وہ کہاں ہیں وہ دے دیجئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، دے دیجئے. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو حدیث آپ بھائی پیش کرتے ہیں کہ بھائی کیسے آپ لوگ کافر کہہ سکتے ہو؟ بھائی مرزا جی کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث پیش نظر نہیں ہے. بھائی میں نماز پڑھنے والا ہوں، مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے والا ہوں اور استقبال میں قبلے ہی کو کرتا ہوں، تو مجھے کیسے کافر مرتد کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہانی میں نے کہیں اور سے لے لیا، اگر کلیہ قاعدہ یہ ہے مرتد اور کافر ہو جاتا ہے وہ شخص، تو یہ حدیث کا کیا کریں گے؟ یہ دو جواب مجھے چاہیے. جی ابھی مسئلہ یہ ہے، منصور صاحب وہ پیجز پڑھ لیں. لیکن ایک بات اسکانی صاحب، عقیدہ کہ وہ سولی پہ چڑھے اور سولی پہ فوت نہیں ہوئے، یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ فوت نہیں ہوئے سولی پہ، وہ نہیں فوت ہوئے، نہ ان کو قتل کر سکے. قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا، معاملہ شبے میں پڑ گیا. یہ ہے عقیدہ ہوتا ہے قرآن کی آیت پہ. آسکانی بھائی کہہ رہے ہیں، آج کے سید سکر بھائی آسکانی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اپنا وسیم ماؤد نے کہہ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں جو تورات اور انجیل کی طرف جھکتے ہیں، یعنی ان سے کچھ اعتماد لیتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں من صلی اللہ صلاتنا. تو بات یہ ہے اسکانی بھائی کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا اور قتل ہوتے ہوئے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا، یعنی وہ ناراض ہوئے کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی مسلمان ہو گیا تھا. دوسری طرف آپ پھر کلمہ گو کو کافر کیوں کہتے ہیں اگر وہ آیات کا ہی انکاری ہو جائے؟ تو یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح کا معاملہ آپ پیش کر رہے ہیں. جی اچھا بھائی، اگر کسی کو سمجھ آیا ہو محترم ٹاک ماسٹر جی کی بات تو بتا دیجئے. ہمارا کہنا یہ ہے، اب وہ پیش کر رہے ہیں کیا شققت قلبا، وہ واقعہ پیش کر رہے ہیں، کیوں آپ نے کافر سمجھا، یہ پیش کر رہے ہیں. ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں کہا جا سکتا، کیوں کہتے ہو؟ اور مرزا جی خود جو ہے کافر کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ لوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. آپ بھائی بات تو سنیے، ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مسلمان کو کافر کہا نہیں جا سکتا. آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. بھی میرا بھی تو دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں. آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو من صلی اللہ صلاتنا جو حدیث ہے اس کی روح سے نبی نے تو یہ کلیہ قاعدہ بتا دیا. تو کیا مرزا جی بھول گئے تھے اس کلیہ قاعدے کو کہ کہہ رہے ہیں اس شخص کو جو قبلہ رخ بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور مسلمان کا کانا بھی کاتا ہے کاٹا ہوا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ آپ رسول مرزا جی کیوں کہہ رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کہا جا سکتا ہے نا. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. مرزا جی تو ہم میرے ساتھ ہیں، وہ کافر مشرک کہہ رہے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ یہ آپ سے سوال ہے. بھائی میں تو نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں آپ پکے کافر ہیں. میں کب کہتا ہوں؟
यानी आपको काफिर हम कह सकते हैं ना। जिसने वक्त के नबी को नहीं माना वो मुसलमान हो कैसे सकता है? हाँ, यानी आपको तसल्ली हुई, हाँ तसल्ली हो गई आपको। अब तो आप खुश यही हो तो गए। बात है, इसी ये वाह, हम यही तो काफिर- बात